We continue with our studies today on why we need to get back to church. और हम लोग अपने उसी शीर्षक पर जो कहता है कि क्यों हमें कलीसिया में वापस आना चाहिए, उसके विषय में बने रहेंगे। It is so important for us to get back to church after all this time of confinement. और ऐसे परेशानियों के समय में भी यह बहुत ज़रूरी है कि हम कलीसिया में वापस आएँ। It is so important that we do not forget the importance of gathering together as the body of Christ. और मसीह की देह होने के नाते यह बहुत ही ज़रूरी है कि हम एकत्रित आकर संगति करना यह कभी भी ना भूलें। Now, I know that because of the pandemic, we have not been able to gather together in the church, और हम जानते हैं कि अभी इस महामारी के कारण हम कलीसियाओं में एकत्र नहीं हो पा रहे हैं, but we know that we can still meet online and gather together as the body of Christ. लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि हम लोग मसीह के देह के नाते ऑनलाइन इस ऐसी सभाओं में जुड़ सकते हैं। Now, many of us have become lazy and we have not taken this time online seriously. और हमें से बहुत से लोग आलसी बन चुके हैं और ऑनलाइन में जो Now, we know that God blesses us when we come together in unity. This और हम seems to जानते हैं कि जब हम लोग सब मिलकर एकता में आते हैं, तब परमेश्वर हमें आशीष करते हैं। please bear with us the problems with the internet in India right now. I know that there is a lot of problems with the connections, and Pastor Atul is there in India translating for us. और कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम है, इसलिए आगे-पीछे आवाज़ आ रही है, थोड़ा-सा सह लीजिए। So we read in Psalm 133 that the blessing of the Lord falls upon the people of God when they are together in unity. और हमने भजन संहिता 133 में पढ़ा था, एकता का सामर्थ्य जब परमेश्वर के लोग एकत्रित आकर के प्रार्थना करते हैं, तब वहाँ पर परमेश्वर की आशीषें उंडेली जाती है। God's purpose for us is never to be alone. परमेश्वर का उद्देश्य हमारे लिए कभी भी हम अकेले रहे ऐसा नहीं है। I would ask you all please to turn off your cameras if you've joined us. और मैं सभी से विनती करना चाहता हूँ, जो हमारे साथ जुड़े हैं, कृपया अपने कैमरास को ऑन कर दीजिए। Off कर दीजिए, turn off. ऑफ कर दीजिए, सॉरी। हाँ, cameras को off कर दीजिए. So we have understood that God does not want any of us to be alone. और हम जानते हैं कि परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते कि हम में से कोई भी अकेला रहे। There's a purpose why God wants us to be together with the brothers and sisters of Christ. और परमेश्वर का एक उद्देश्य है कि क्यों परमेश्वर हम लोगों को जो प्रभु में भाई और बहनें हैं, एक साथ रहे। There are reasons, important reasons, why God wants us to live together and be together with the other believers. और कुछ ऐसे कारण हैं जिसके लिए परमेश्वर चाहते हैं कि प्रभु के लोग या फिर एक विश्वासी भाई बहनें जो हैं, वो एक साथ रहना ज़रूरी है। God has already made a system and structured a system for us to have fellowship with each other, which is called the church. और परमेश्वर ने पहले से ही एक सिस्टम बना के रखा है, वो इसीलिए ताकि मसीह की कलीसिया एक संगति में आकर बने रहे और जिसे कलीसिया ऐसा कहते हैं। Let's look at some of the benefits of being part of the body of Christ. और आइए हम लोग मसीह की देह के भाग होने के कुछ लाभ को देखेंगे। First of all, we'll go to Jeremiah chapter 3. पहले बात हम लोग देखेंगे यिर्मयाह उसका 3रा अध्याय, Jeremiah chapter 3, verse 15. यिर्मयाह 3रा अध्याय और वचन 15।
Okay. It says, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। So here God gives us a promise that He will give to us pastors according to His heart. तो यहाँ पर परमेश्वर हमें एक प्रतिज्ञा देते हैं। प्रतिज्ञा है पासबान देने की, मतलब परमेश्वर कहते हैं कि वह अपने मन के अनुकूल हमें चरवाहे देगा। And it says that they will teach you with understanding. और वह इस प्रकार से कहता है वचन कि वह अपने ज्ञान के अनुसार तुम्हें सिखाएगा। And they will feed you God's word and give you understanding of God's word. और वह आपको परमेश्वर का वचन खिलाएंगे, आपको परमेश्वर का वचन समझने में मदद करेंगे। Now, we all know that the Holy Spirit can teach us all things as the word promises. और हम सभी जानते हैं, जैसे परमेश्वर का वचन प्रतिज्ञा भी करता है कि पवित्र आत्मा हमें सारी चीजें सिखाते हैं। But God has spoken this word for a reason. लेकिन परमेश्वर ने यह अपने वचन किसी उद्देश्य के साथ, किसी कारण से बोले हैं। It is so important for us to have leadership that will teach us and guide us and give us understanding of the word of God. और बहुत ही ज्यादा यह जरूरी है कि अगुवाईपन हो, और जो अगुवे होते हैं वे हमें सीखे, हमें मार्गदर्शन करें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, और यह बहुत ही जरूरी है। You see, because if you understand the whole Bible, but you don't have the heart of God, it is useless. क्योंकि आप समझिए इस बात को कि अगर आप संपूर्ण बाइबल को पढ़े, लेकिन और आपको समझे, लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर के जैसा हृदय नहीं है, तो यह बहुत ही खतरनाक है। That's why God says in this promise that He will give us pastors according to His heart. और इसीलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर अपने मन के अनुकूल तुम्हें चरवाहे देगा। Because when you are under a pastor that God has chosen for you, then God will speak to that pastor for you. क्योंकि जब आप किसी ऐसे पासबान के अधीन होते हैं जिसे परमेश्वर ने आपके लिए चुना है, तो परमेश्वर उस पासबान से आपके विषय में बात करता है। And that pastor will speak to you directly what God is saying, not what you want to hear. और वो पासबान जो है, जो परमेश्वर आपके विषय में कहना चाहते हैं, वो आपसे सीधे-सीधे डायरेक्टली कहेंगे। वो ये बातें नहीं कहेंगे जो आप सुनना चाहते हैं, लेकिन वही कहेंगे जो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं। So it is very important for us to be submitted to the pastor God has chosen for us. And normally, how do you know which pastor is right for you? और इसीलिए बहुत ही यह ज़रूरी है कि हम लोग उन पासबान के अधीन रहे जिस पासबान को परमेश्वर ने हमारे लिए चुना है, और यह बहुत ज़रूरी है। और हम लोग कैसे जाने कि कौन-सा पासबान हमारे लिए है? The pastor that challenges you to always grow more and more is the right one for you. जो पासबान आपको हमेशा चुनौतियाँ देता है ताकि आप बढ़ते जाओ, वह ही पासबान एक सही पासबान है। The pastor that is always telling you the truth, even if it hurts you, is the right pastor for you. ऐसा पासबान जो आपको हमेशा सच्चाई बताता है, चाहे फिर वो सच्चाई आपको दुःख क्यों ना पहुँचाए, लेकिन फिर भी वो आपको बताता है, वो सही पासबान है। So, this is one of the greatest benefits of being part of a church, of a body. और यही एक बड़ी एक आशीष या फिर एक लाभ है मसीह के देह के भाग होने का। Another benefit is that we are then also accountable to each other. We have to give answers to each other. और दूसरी जो बात है वो यह है कि हम एक दूसरे के विषय में लेखा देने वाले भी लोग हैं। हमें एक दूसरे को जो है लेखा जोखा भी देना है। If someone starts missing the church, if you are regular in the church, they will know you are missing. और मानो अगर कोई रेगुलर कलीसिया में जाने वाले लोग हैं, और उस समय अगर आप भी अगर रेगुलर जाने वाले लोग हैं और कभी आप नहीं आते हो, तो उनको मालूम हो जाएगा कि आप कुछ दिनों से नहीं आ रहे हैं।
And especially the leaders will know when something is wrong with you. और विशेष करके अगुवे लोग जब उनके साथ कुछ गलत होता है या फिर वो किसी गलत काम में पड़ जाते हैं, तो जल्दी से लोग उसको पकड़ लेते हैं। And the leaders will know if you are walking incorrectly. और अगुवों को भी मालूम पड़ जाता है जब जब आप गलत रीति से या फिर गलत तरीके से चल रहे हो तो। In Hebrews chapter 13, इब्रानियों उसका 13वां अध्याय verse 17 और वचन 17 में says, "Obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you." अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। So, how important do you think it is to have somebody constantly praying for you? तो यह कितना महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए कोई ऐसा व्यक्ति हो जो लगातार हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। See, these leaders and pastors, they have the obligation to watch over your soul. देखिए, ये जो अगुवे या फिर जो पासबान हैं, उन्हें यह ज़िम्मेदारी देकर रखे हैं कि वे हमेशा आपके आत्मा पर ध्यान दे रहे, आपके आत्मिक जीवन पर ध्यान देते रहे। Just like God is always watching over us and sending his angels around us, we don't really see it. और जिस प्रकार से परमेश्वर ने स्वर्गदूत हमारे इर्द-गिर्द रखे हैं ताकि हमारे ऊपर वो ध्यान रखें, उसी प्रकार से पासबान भी होते हैं और उनको हम देख नहीं पाते हैं। In the same way, when you are under leadership by God, you have extra covering. उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर के कार्य की अगुवाईपन में होते हो, तब आपको एक विशेष सुरक्षा दी जाती है। Now, if you are a pastor and you are a leader and you are not praying for those God has given under you, you are in sin. तो मानो अगर आप एक पासबान हैं या फिर एक अगुवे हैं और परमेश्वर ने जिन लोगों को आपके हाथों में सौंपा है, उनके लिए अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो, तो आप पाप में जीवन जी रहे हो। This is in the Bible that if you are a leader, if you are someone that has people under you and you're not praying for them, then you are committing a sin, according to और God. बाइबल के अंदर और परमेश्वर ने आपके अधीन में कुछ लोग देकर रखे हैं और अगर आप उनके लिए प्रार्थना नहीं करते हो, तो इसका अर्थ यह है कि आप पाप कर रहे हो। So we have pastors that are appointed by God. और हमारे पास कुछ पासबान हैं जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए हुए हैं। And these appointed pastors and leaders are constantly watching over us and praying for us. और ये जो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए पासबान और लीडर जो है, वो लगातार हमारे जीवन की ओर देखते रहते हैं और हमारे लिए दुआ करते रहते हैं। And we are accountable to them and they are accountable to us. और हमें उनको लेखा-जोखा देना है और उन्हें हमें लेखा देना है। And we are accountable to each other in the body of Christ. और मसीह की देह के अधीन होने के नाते हम सभी एक दूसरे को लेखा-जोखा देना है। And one day, every one of us will be accountable to God. और एक दिन हम सभी लोग अपना लेखा-जोखा परमेश्वर के सामने भी देंगे। For example, many of you know that I started a Daniel fast this week. और उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा, वो आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि मैंने वो दानियल जिस प्रकार से उपवास प्रार्थना किया उसकी शुरुआत किया है इस सप्ताह से। Now, I am saying this openly. Why? मैं ये सब कुछ खुले तौर से अभी आपको बता रहा हूँ, क्यों? Because I want to be accountable to every one of you. क्योंकि मैं जो है आप सबके सामने एक पारदर्शी या फिर एक लेखा देने वाला व्यक्ति बन के रहना चाहता हूँ। I confess that I am very weak when it comes to fasting.
और मैं इस बात का अंगीकार भी करके सबको दर्शाता हूँ या बताता हूँ कि जब उपवास की बात आती है तो मैं काफ़ी कमज़ोर सा भी हूँ। And because I have told everyone, I've asked people to pray for me while I fast, और क्योंकि जब मैं उपवास करता हूँ उसके विषय में आप लोगों के लिए प्रार्थना माँगता हूँ कि ऐसे समय मुझे मेरे लिए दुआ करो तो because I have asked you and told you everybody that I am fasting, I cannot stop the fast. क्योंकि मैंने आप सब लोगों को यह बताया है कि मैं अभी उपवास और प्रार्थना कर रहा हूँ, इसीलिए अभी मैं इसको रोक नहीं सकता। Because I am now accountable to you. क्योंकि अभी मैं अब मुझे आपको लेखा देना है And this gives me strength to continue. और यह मुझे बल देता है ताकि मैं लगातार ऐसा करता रहूँ। This is the strength of being accountable one to another. और यही एक ताकत है जिसमें हम एक-दूसरे के प्रति लेखा-जोखा देने वाले बन सके। Because we care about each other and we don't want to let anyone down. क्योंकि हम एक-दूसरे की चिंता करते हैं और हम किसी को भी नीचे नहीं गिरना देना चाहते। I want to also announce to you that on the 16th of May, Sunday, और मैं यहाँ पर कुछ एक सूचना आपको देना चाहता हूँ कि 16 मई को जो रविवार है after the Sunday service, we will be having a special prayer time और प्रार्थना सभा के बाद में हम एक विशेष प्रार्थना करेंगे, where we will be praying for deliverance and healing. जहाँ पर हम छुटकारे और चंगाइयों की प्रार्थना करने वाले हैं। So, Sunday, 16th of May, after the church service, those that are with us, we will pray for you for deliverance and healing. और 16 तारीख के रविवार को हमारे आराधना सभा समाप्त होने के बाद हम लोग विशेष प्रार्थना करेंगे। जो लोग भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, उनकी चंगाई और उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। So, please invite people and we will expect great things from God. और इसीलिए आप और भी लोगों को इनवाइट करें और परमेश्वर से महान चीज़ों की अपेक्षा करें। Let us continue. आइए हम लोग लगातार बने रहेंगे। Proverbs chapter 27, verse 17. और नीति वचन उसका 27वां अध्याय Proverbs 27, verse 17 नीति वचन 27 अध्याय और वचन 17 says, Iron sharpens iron, so a man sharpens a friend's character. जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। So, iron sharpens iron. लोहा लोहे को चमका देता है। When you are together in the church all the time, और जब आप कलीसिया में हमेशा एक साथ होते हैं, then you are sharpening each other. तब आप एक दूसरे को जो है चमकदार बनाते रहते हैं You also bring out the bad things from each other. और आप एक दूसरे से जो है बुरी चीजों को भी बाहर निकालते हो। You see, the way you act in your family is not the same way you act in the church. और जैसे आप अपने परिवार में बर्ताव करते हो, वैसा आप कलीसिया के अंदर बर्ताव नहीं करते। In the church, you might be perfect and quiet and gentle. और कलीसिया में आप जो है बहुत ही सभ्य रूप से, शांत रूप से और एक जो है एक अच्छे दिखाई देने वाले व्यक्ति के रूप से रहते हो। But then in your family, in your house, you are a different person. और आपके परिवार में, आपके घर के अंदर आप एक अलग व्यक्ति बन जाते हो। When you start becoming and getting closer to the family of God, और जब आप परमेश्वर के परिवार के निकट आने के लिए जब तैयार होते हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसके निकट आते हो then your true character starts to come out. तब आपका जो सही जो सच्चा चरित्र है, वह बाहर दिखाई देना शुरू होता है। And when somebody else tells you in the church what your family has been telling you, then you will take it seriously. और फिर उसके बाद
आपका परिवार जो आपको बता रहा था उसके विषय में जब कलीसिया का कोई व्यक्ति आपको बताता है, तब आप उन बातों को बहुत ही गंभीर रूप से लेते हो। So iron sharpens iron, and we sharpen each other. और इसी जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही हम भी एक दूसरे को चमका सकते हैं। Because the family of God is here to help each other and to lift each other up. क्योंकि परमेश्वर का जो परिवार है वो इसीलिए है कि वो एक दूसरे की सुने और एक दूसरे को ऊंचा उठाते रहे। And the best way to lift someone up is to tell them the truth. और एक सही मार्ग वह है किसी को ऊंचा उठाने का, वो है सच्चाई का प्रचार करना या फिर किसी को सच्चाई बताना। A true friend will tell you the truth so that you become a better person. और एक सच्चा मित्र आपको सच्चाई ही बताएगा ताकि उसके द्वारा आप एक उत्तम व्यक्ति बन सको। So, this is probably one of the greatest benefits of always being part of a church. और यही एक बात है जिसे हम बोल सकते हैं कलीसिया का भाग होने की वजह से हमें एक इस प्रकार की उत्तम आशीष या लाभ होता है। By being together, we have the opportunity to become better people because we are always with people of God. और एक साथ रहने के द्वारा हम जो है बहुत ही उत्तम से उत्तम लोग बन सकते हैं क्योंकि हमेशा हम परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करते हैं। Philippians chapter 2, verse 3 and 4. फिलिपियो उसका दूसरा अध्याय वचन 3 और 4। Do not act out of selfish ambition or conceit, but with humility think of others as being better than yourselves. Do not be concerned about your own interest, but also be concerned about the interest of others. विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। Here we have a commandment directly from the Lord about how we need to treat each other. और यहाँ पर परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा हम सभी के लिए है कि हम एक दूसरे के साथ किस प्रकार का बर्ताव रखें। It is so hard to make someone make him think he's better than you. और यह बहुत ही मुश्किल है कि आप किसी से कहो कि वह आपसे अच्छा है। Normally, every time we are in a conversation and somebody talks about something, we always say, yes, yes, I can also do that. और हम लोग साधारण तौर से इस प्रकार से देखते हैं कि अगर हम किसी को कोई कार्य के विषय में बताएं तो वो लोग भी इस प्रकार से कहते हैं कि हाँ हाँ मैं भी वो काम कर सकता हूँ। And every time we are in a conversation, we always want to be the center of attention. और हमेशा अपने वार्तालापों में हम किसी न किसी लोगों के जो आकर्षण का एक केंद्र बनकर रहना चाहते हैं। But the way the Lord is teaching us here, when we are talking with people, we need to express their greatness. लेकिन यह जो वचन इस प्रकार से हमको सिखाता है कि जब कभी भी हम लोगों के साथ रहते हैं, तब हम उनकी भलाई या फिर उनकी अच्छाई के विषय में हमेशा प्रकट करें। Says, but with humility think of others as being better than yourselves. और ये वचन इस प्रकार से कहता है कि पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। It's not saying think of others better than yourself who actually are better than you. और ये ऐसा नहीं कहता वचन कि जो तुमसे अच्छे हैं उनको ही अपने से अच्छा समझो। But even those that are not better than you, think of them better than yourself. लेकिन वचन इस प्रकार से कहता है कि चाहे जो आपसे अच्छे नहीं भी है तो भी उनको दीनता के द्वारा अपने से अच्छा समझो। If you can do that, then you will always walk humbly. और जब आप ऐसा करना शुरू करोगे तो तुम हमेशा नम्रता पूर्वक जीवन जी पाओगे। And this can be practiced within the church when you're part of a body. और जब आप मसीह के देह के अंग है तो उस कलीसिया के अंदर ही आप इन बातों को कर सकते हो। And then it says, do not be concerned about your own interest, but also about the interest of others. और फिर इस प्रकार से भी कहता है कि हर एक
अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता किया करें। How can you do this if you're not part of a body? और आप ये काम कैसे करोगे जब तक आप आप मसीह के देह के अंग नहीं रहोगे तो। How can you take the interest of others if you don't spend time with other people in the church? और आप आप जो है दूसरों के हित की कब सोचोगे, जब अगर आप उनके साथ कलीसिया के लोगों के साथ संगति नहीं करोगे तो। Now, I know that because of the pandemic, it is now impossible to meet like we used to meet before. मैं जानता हूँ कि इस महामारी की वजह से जैसे हम लोग पहले मिल सकते थे उस प्रकार से अभी नहीं मिल पाते हैं। And we can no longer have hundreds of people under one roof. और जो है एक छत के नीचे हम लोग सैकड़ों लोगों को जमा भी नहीं कर सकते। But we are living in a modern time where we have internet and phones available. लेकिन जब हम लोग ऐसे आधुनिक समय में रह रहे हैं जहाँ पर हमारे पास इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन जैसी सुविधाएँ उपलब्ध है। Now, God is not saying that you always have to meet under the pastor and under hundreds of people. और परमेश्वर हमको कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं कि आपको हमेशा पासबान के अधीन होकर मिलते ही रहना है या लोगों के अधीन होकर मिलते ही रहना है। But you need to constantly meet with each other. लेकिन हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हम लोग लगातार लोगों से मिलते रहें। The church is changing, God is doing a new thing. और कलीसिया में बदलावट आ रहा है, परमेश्वर कोई नए कार्य कर रहे हैं। God is taking us back to the church of the book of Acts. और परमेश्वर जो है हमें जो प्रेरितों के काम में कलीसिया का वर्णन किया गया है, उस कलीसिया की ओर लेकर जा रहे हैं। And the way we need to meet now is on a daily basis with a small group. और हर दिन जैसे हमें मिलना है वो उस प्रकार से जैसे उस वहाँ की कलीसिया प्रतिदिन जो है समूह में संगति में मिला करती थी। So I encourage you to find two, three, four, five brothers and together online on call meet them daily. और मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हर दिन 2, 3, 4 भाई या बहनें जो है हमेशा कॉन्फ्रेंस कॉल या फिर किसी न किसी रूप से एक दूसरे के साथ मिलते रहे और प्रार्थना करते रहे। Come together in prayer and the study of the word. हर दिन प्रार्थना और परमेश्वर के वचन या मनन में एक साथ आते रहे And be accountable to each other. और एक दूसरे के प्रति लेखा देने वाले बने रहे। This is how the church is moving forward now. और इसी प्रकार से कलीसिया जो है वो आगे बढ़ती है। Because God wants us to be part of a body, but not dependent only on the pastor. क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके अंग के देह के अंग बने, लेकिन हमेशा पासबान पर निर्भर रहने वाले भी नहीं बनना है। You don't need the pastor to read the Bible for you. आपको आपके लिए बाइबल पढ़ने के लिए पासबान की आवश्यकता नहीं है। You don't need the pastor to pray for you. आपको पासबान की आवश्यकता हमेशा आपके लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं है। You need to read the Bible आपको बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है and you need to pray. और आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। And this is how you will help each other. और इसी प्रकार से आप एक दूसरे की मदद सहायता कर सकते हो। Galatians chapter 6, गलातियों उसका 6वां अध्याय verse 1 and 2. और वचन 1 और 2। Brothers, if a person is caught doing something wrong, those of you who are spiritual should restore that person gently. Watch out for yourselves so that you are not tempted as well. Practice carrying each other's burdens. In this way, you will fulfill the law of the Messiah. हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और उस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। Did you know that there was a commandment, the law of the Messiah? और क्या आप
जानते हो यहाँ पर एक आज्ञा है जिसे मसीह की व्यवस्था कहते हैं। Which commandment did Jesus give us? क्या यह वो आज्ञा है जो यीशु मसीह आपको देते हैं? We have the 10 commandments, right? हमारे पास 10 आज्ञाएं हैं, सही है। And we have many more commandments in the Old Testament and the New Testament. और पुराने नियम में और नए नियम में और भी बहुत सी आज्ञाएं हैं। But when Christ was asked which is the most important commandment, what did he answer? लेकिन जब मसीह ने पूछा था कि सबसे ज्यादा बड़ी या फिर महत्वपूर्ण आज्ञा कौन सी है, तब उसने किस प्रकार का जवाब दिया? He first said, love your God first of all. और यीशु मसीह ने सबसे पहले कहा है कि तुम सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम रखो। And then he said, love each other. और फिर दूसरी आज्ञा उसने इस प्रकार से कहा कि एक दूसरे से प्रेम रखो। This is what this commandment is talking about. और यह उस आज्ञा के विषय में यह व्यवस्था बात करती है। Verse 2 says, practice carrying each other's burdens. In this way, you will fulfill the law of the Messiah. और वचन 2 इस प्रकार से कहता है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। This is the law of the Messiah. We have to carry each other's burdens. और यही मसीह की व्यवस्था है, हमें एक दूसरे का भार उठाना है। Means we have to continually be with each other. जिसका अर्थ है कि हमें लगातार एक दूसरे के साथ बने रहना है। We have to ask each other, is there any way I can help? और हमें एक दूसरे को पूछना है कि क्या मैं आपकी किसी रूप से मदद कर सकता हूँ क्या? We have to pray for each other. हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी जरूरी है। You see, we can preach like an angel. और हो सकता है कि हम लोग स्वर्गदूतों के जैसे प्रचार करें, We can do miracles of healing and deliverance. या फिर हम लोग बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार और चंगाई और जो है छुटकारे करें। But if we cannot carry each other's burden, लेकिन यदि हम अगर एक दूसरे का भार न उठाए then we are not fulfilling the law of the Messiah. तो हम मसीह की व्यवस्था को पूरी नहीं कर रहे हैं। We have understood from the very beginning of these teachings that God does not want anyone to be alone. और हमने शिक्षा के शुरुआत से एक बात को आज सुना है, वो यही है कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई भी अकेला रहे। When God made Adam and he gave him all the responsibility of the earth, और परमेश्वर ने आदम को बनाया और पृथ्वी की सारी जो जिम्मेदारी है उसको दी। he said, it is not good for this man to be alone. और फिर उसने कहा कि इस व्यक्ति का अकेला रहना यह अच्छा नहीं। Does that mean that if you are alone, God cannot use you? क्या इसका अर्थ ऐसा है कि अगर आप अकेले हो तो परमेश्वर आपका इस्तेमाल नहीं कर सकते? No, of course he can use you, but he wants you to be part of the body of Christ. नहीं, वो निश्चित आपको तभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसकी देह के भाग बने रहे। He wants you to be part of a group of people which is called the church. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम जिसे कलीसिया कहते हैं उस समूह के भाग हमेशा बने रहे। We studied last week how when Christ was on the cross, हमने पिछले सप्ताह में सुना था कि कैसे यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर थे and he told John, the apostle John, to take his mother Mary into his house. और उसने अपने चेले प्रेरित यूहन्ना से इस प्रकार से कहा था कि उसकी माँ को वो अपने घर लेकर जाए। His mother was not abandoned by her family, और उसकी माँ जो है वो अपने अपने बच्चों या अपने परिवार के द्वारा त्यागी हुई नहीं थी, but he knew that his mother needed a church, needed a believer that was strong to be with. लेकिन यीशु मसीह जानते थे कि उसकी माँ को एक कलीसिया या फिर एक ऐसे विश्वासी व्यक्ति की जरूरत है जो प्रभु में मजबूत है, Because back then there were no churches. क्योंकि उन दिनों में वहां पर जो है उसके घर में कोई कलीसिया नहीं थी। Just like right now, there are not churches.
और जैसे अभी है उस प्रकार से वहाँ पर कभी कोई कलीसिया नहीं थी। So don't be alone. Become part of a group as we have the facility of internet and online meetings. तो इसीलिए आप अकेले ना रहें और जैसे हमारे पास मीटिंग्स की फैसिलिटीज़ है, उसके द्वारा हम संगति के भाग बन सकते हैं। When you come together as the body of Christ, no matter how big or small the group, और जब आप मसीह की देह के रूप में आप एक साथ आते हो, ये कोई मायना नहीं रखता कि आपका ग्रुप कितना छोटा है या कितना बड़ा है। then God's presence is there and his blessings will start to flow. लेकिन अगर वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, तो उसकी आशीषों का बहना वहाँ पर शुरू हो जाएगा। When you come together in unity with brothers and sisters and you spend time together giving glory to God, God has to pour down his blessings. और प्रिय भाइयों और बहनों, जब आप मसीह की देह के नाते एक जगह पर आते हो और वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, तो उस उपस्थिति के द्वारा निश्चित ही परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बहेगी। No one carries the anointing with them. कोई भी व्यक्ति अपने साथ अपना अभिषेक लेकर नहीं चलता, God pours the anointing wherever you are together in unity. लेकिन परमेश्वर उस अभिषेक को पकड़े रहता है उन सब जगहों पर, जहाँ पर भी आप एकता में उसके नाम से आते हो। This is God's promise to us, and we need to stand on that promise and tell God, God, we want your blessings now. और यही परमेश्वर की प्रतिज्ञा है हमारे लिए, और हमें परमेश्वर को उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रार्थना करते हुए कहना है कि परमेश्वर यही अपनी प्रतिज्ञा को आप पूरी कीजिए। So we understood today the importance of meeting with other brothers and sisters. तो आज हमने समझा है भाइयों और बहनों का जो मसीह में है एकत्रित आकर मिलने का महत्व कितना ज्यादा है। And we understood that God is pleased when we do this on a regular basis. और परमेश्वर जो है आनंदित होते हैं जब हम लोग इस प्रकार के बातें लगातार करते रहते हैं। तो We thank the Lord for his word. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके वचन के लिए। Let us pray right now. आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। Father, we just thank you और पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं that you are true to your word. क्योंकि आप अपने वचन के साथ सच्चे हैं। We thank you that you are right now pouring out your blessings. और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि इस समय आप अपनी आशीषों को उंडेल रहे हैं, Because we have taken the time to meet together with other brothers and sisters. क्योंकि हमने समय को निकाला है ताकि अपने अन्य भाई और बहनों के साथ मिल पाए। Right now, we receive the blessings you are pouring out. और इस समय हम लोग उन सभी आशीषों को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं जो आप हम पर उंडेल रहे हो। We receive right now the healing in every home that is listening और, right now. और हर एक घर में जो आज हमको सुन रहे हैं, आपकी आशीषों को हम लोग मांगते हैं इस समय प्रभु। We receive the healing. हम चंगाई की घोषणा करते हैं, चंगाई को स्वीकार करते हैं। We receive, Lord, the breaking of the chains. और पिता प्रभु जी, हम लोग जो बंधन है उसको तोड़ते हैं प्रभु। Thank you, Lord, for the freedom we have in Christ right now. और पिता, हम धन्यवाद करते हैं जो मसीह में आपने हमें आजादी दी है उसके लिए। And right now we receive that you are in those houses with us. और इस समय हम लोग देखते हैं हर एक लोगों के घरों में जो आज हमारे साथ है, आपकी उपस्थिति है प्रभु। We ask that you fill every house with your glory right now. और पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक घरों को आप अपनी महिमा से भर दीजिए। As we have just presented ourselves to you, और जैसे अभी हमने अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत किया है, we ask that you send your consuming fire and receive us as your offering, as an offering. हम प्रार्थना करते हैं कि आपका जो भस्म करने वाली जो अग्नि है वो हम पर भेजकर हमें आपके लिए एक बलिदान स्वरूप ग्रहण कीजिए। Receive right now our prayers as an offering unto you.
और हमारी प्रार्थना को अपने पास एक दान के रूप में ग्रहण कीजिए and let your glory fill every temple. और होने पाए कि आपकी महिमा हर एक मंदिरों के अंदर भर जाए Because every house is a temple of worship. क्योंकि हर एक जो घर है वो आराधना का मंदिर है And every person that has received Christ is the temple of the Holy Spirit. और हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करता है वह पवित्र आत्मा का मंदिर है We receive your glory right now in Jesus' mighty name. और हम यीशु के सामर्थ्य नाम में आपकी महिमा को प्राप्त करते हैं आमीन। Thank you for joining us. और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए We ask you that you continue to meet us every week. और हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि हर सप्ताह आप लगातार हमसे मिलते रहे And we know that you will have a testimony for this next week. और हम जानते हैं कि अगले सप्ताह आपके पास निश्चित ही कुछ गवाहियां रहेगी God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष दे